unable to whatever the amount of the blood which is heart is unable to pump is called cardiac output basically. So it is cardiac output is equal to stroke volume and heart rate, and the stroke volume is again dependent on three factors: the preload, contractility, and afterload of the heart. So stroke volume is the volume of the blood pumped from the left ventricle per beat, and depending on three important factors, as I've already mentioned, is preload, whatever the blood coming into the heart and on the right side, and afterload is the amount of force the left ventricle has to generate to overcome to push the blood into the systemic circulation, and the contractility is the how the quality of the contraction of the left and right ventricles both. So preload is the volume of blood received by the heart. Basically, preload is a stretch that whatever the amount of the blood which is coming into the right ventricle, it will stretch, and that will go into the then pulmonary circulation, comes back into the uh, left ventricle circulation. It is LA and then LV, and the amount of blood which is coming in will stretch the left ventricle, and the कितना उसने स्ट्रेच किया वो डिपेंड करेगा कितना अच्छा स्ट्रोक वॉल्यूम डोनेट हो रहा है. So the amount of blood volume being returned to the heart is basically the preload, and afterload is the pressure resistance the heart has to overcome to eject blood. Afterload is squeeze, the amount of resistance that the heart has to overcome in order to eject blood. सो प्री लोड जो हमारे पास जो बेसिकली बच्चों में जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसके जो मेन रीजन जो हमारे पास आते हैं वो प्री लोड होते हैं. मेनली हमारे पास जो फेलियर के सिम्टम्स होते हैं जो बच्चों में डिजीज होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्री लोड प्रॉब्लम. ठीक है, और उसमें वॉल्यूम ओवरलोड आता है जिसमें आपके जो कॉमन जो कंजेनिटल डिजीज है लाइक वीएसटी है, वैल्वुलर इंसफिशिएंसी है, मेनली जो है सेप्टल लीशंस होते हैं या आपका पीडीए है, लार्ज पीडीए है, दैट आल्सो gives a volume load to the heart and leads to the congestive heart failure commonly. And valvular insufficiency, although is a cause, but it is not that much common. Then afterload is the resistance pressure against which the heart must pump blood, e.g. systemic vascular resistance है. अच्छा, आफ्टरलोड में जो आपके जो कॉमन एग्जांपल आ जाते हैं उसमें एओर्टिक स्टेनोसिस है, क्रिटिकल पीएस है या कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा है. एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है, वो बेसिकली कि मसल कितना अच्छा काम कर रहा है हार्ट का. ठीक है, लाइक मायोकार्डाइटिस फॉर एग्जांपल है, उसमें इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से जो है आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज इंक्रीज हो सकती है. सही है, एंड वॉल्यूम लेकिन इंक्रीज तो होगी, कार्डिया तो होगा, लेकिन वो इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा जिसकी वजह से जो है लाइक रिजेक्शन जो है हार्ट की वो अफेक्टेड होगी. लेकिन ऑल्दो इट इज कंडक्टेड लाइक एक नॉर्मल पेशेंट का जो हार्ट रेट अगर लेट सपोज इन्फेंट का है 110 अगर नॉर्मल होता है वो 160 170 पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन उसका जो इतनी इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होगी, इसलिए ब्लड इजेक्ट नहीं हो पा रहा होगा प्रॉपरली. सो वॉल्यूम ओवरलोड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन चिल्ड्रन. अच्छा, ये डिफरेंट काजेज हैं जो कि आपके बच्चों में कॉमन काजेज जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कराते हैं. इसमें अगर फीटस की बात की जाए तो सीवियर एनीमिया है, लाइक हीमोलिसिस है, फीटल मेटल ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम्स हैं. arrhythmias is the important cause in children, especially चाहे ब्रेडिकार्डिया हो या फिर टेकिकार्डिया हो, both can cause congestive heart failure. like SVT है, ventricular tachycardia तो less common होते हैं खैर, लेकिन complete heart block, ब्रेडिकार्डिया वगैरह हो गए वो भी congestive heart failure करवाते हैं in fetus. Then again, full term neonates may birth asphyxia is a very important cause of heart failure. Then left side obstructive lesion like coarctation of aorta, critical AS हो गया, या right side obstructive lesion like critical PS can also lead to the heart failure. Transposition of great arteries, viral myocarditis, anemia again, SVT and complete heart block will again come. इसी तरह जो प्रीमेच्योर यूनिट्स होंगे उनमें वॉल्यूम ओवरलोड के चांसेस ज़्यादा होंगे इन स्पेशली इन द सेटिंग ऑफ वीएसडी और पीडीए. लार्ज पीडीए है, लार्ज वीएसडी है, दैट विल पुट अ लार्ज वॉल्यूम ओवरलोड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट स्पेशली एंड विल लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. इन्फेंट टोडलर्स जो होते हैं उनमें लेफ्ट टू राइट कार्डियक शंट्स होते हैं, लाइक वीएसडी अगेन, मेटाबॉलिक कार्डियोमायोपैथी, acute hypertension like hereditary uremic syndrome वगैरह उनमें कॉमन है. arrhythmias अगेन इसमें भी आएंगे, और कावासाकी डिजीज that will lead to ischemic
कार्डियोमायोपैथी, इस्कीमिया होगा एंडोकार्डियम का, और दैट विल लीड टू द इन्फेक्टिव कॉन्टेगिलिटी एंड गेन एंड लीड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जो ओल्डर एडल्ट बच्चे हैं, अडोलिसेंट्स हैं, उनमें जो है रोमेटिक फीवर है, जिसमें अगेन मायोकार्डिटिस, जो हमने लास्ट वीक पढ़ा भी था कि मायोकार्डिटिस जो है चांसेस होते हैं, और दैट कैन लीड टू दी हार्ट फेलियर। और इसके अलावा जो एमआर होता है, सिवियर एमआर, severe AR, that can also lead to the congestive heart failure. Viral myocarditis, the common cause, and endocarditis है, arrhythmias, cardiomyopathy है। इसके अलावा जो है आपके acute hypertension, glomerulonephritis, फॉर एग्जांपल एजीएन हुआ हुआ है, उसमें अगर बहुत acutely हुआ है और हार्ट को टाइम ही नहीं मिला कंपनसेट करने के लिए, उसमें congestive heart failure हो सकता है। Thyrotoxic will lead to the volume overload, similar to the large PDA or large VSD। और इसके अलावा जो है क्रॉनिक अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कॉर्पोरमिनेर है, और क्रॉनिक डिजीज लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह, वो भी हार्ट फेलियर को पोटेंशिएट कर सकती हैं। अच्छा जी, इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एन एक्सेसिव आफ्टरलोड बीइंग प्लेस्ड ऑन द मायोकार्डियम। लाइक मायोकार्डियम जो है वो अगर वो एक्लेमेटाइज ही नहीं हो पाया है, वो जो है उसको वो ही नहीं कर पाया है, लाइक एक्लेमेटाइज नहीं कर पाया है, तो इसलिए जो है वो इतना फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहा है जिससे ऑफलोड को ओवरकम कर सके। जबकि जो आप कॉमनली हम जो सेटिंग पे देखते हैं बच्चों में, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो सेप्टल लीजन से मैंने बताया, वो बेसिकली उसके रीजन क्या होता है कि वो यूजुअली जो है प्रेजेंट करते हैं अराउंड 2 मंथ्स ऑफ एज। 2 मंथ ऑफ एज क्यों है कि जब प्राइमरी हाइपरटेंशन जो न्यूबॉर्न में होती है, वो जब प्राइमरी प्रेशर्स आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू होते हैं, तो देन लेफ्ट टू राइट शंटिंग बढ़ती है, वॉल्यूम ओवरलोड होता है, और दैट विल लीड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यानी जितना जल्दी, और 2 मंथ्स कहा जाता है, लेकिन बात औकात ये जो है प्रेसिडेंट यूजुअली करना शुरू करते हैं अराउंड 4 वीक्स के अराउंड में, जब पर्मी हाइपरटेंशन आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होकर ऑलमोस्ट नॉर्मल पे आ चुकी होती है। तो 4 to 8 वीक्स के दरमियान में यूजुअली जो है बच्चे ये प्रेजेंट करना शुरू होते हैं। प्रेजेंट किस तरह करते हैं? फीडिंग प्रॉब्लम के साथ आते हैं, फीडिंग उनको जो है डिफिकल्टीज हो रही होती हैं, टेक्निया हो रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, या फीड जो है वो जो है प्रॉपर तरीके से ले नहीं पा रहे होते। सही। और इसके अलावा अक्वायर्ड हार्ट डिजीजेस जैसे कि मायोकार्डिटिस एंड कार्डियोमायोपैथी कैन प्रेजेंट एट एनी एज। यूजुअली जो है वो इन्फेंट एज में या ज़्यादा कॉमन है, बट इट कैन प्रेजेंट एट एनी एज। सो क्लासिफिकेशन क्या है हार्ट फेलियर की? अकॉर्डिंग टू कोर्स डिजीज है, अक्यूट हार्ट फेलियर है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर। ऐसे कोई डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन एक अक्यूट ऑब्वियसली जो टाइम नाम ही बता रहा है कि ये विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक डेज और वीक्स का होगा। लेकिन क्रॉनिक हार्ट फेलियर जो है वो क्रॉनिक एक्टिविटी चली रही होगी और फिर अचानक से कोई इवेंट होगा और वो प्रेजेंट कर देगा विद डिक्रीज फंक्शन इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अच्छा, फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू कार्डिक आउटपुट आप उसको डिवाइड कर सकते हो। लो आउटपुट है या हाई आउटपुट फेलियर है। अगर लो आउटपुट है तो ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड होगा, जैसा कि लीजन में मैंने बताया, पीडीए है या फिर लार्ज वीएसडी है। प्रेशर ओवरलोड है, जैसे कि सिवियर कोऑक्टेशन है, सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस दैट कैन लीड टू फेलियर, या कॉन्टिनेंटल प्रॉब्लम्स हैं लाइक मायोकार्डिटिस वगैरह। और हाई आउटपुट हार्ट फेलियर कब होगा? जब हार्ट रेट इज प्राइमरीली अफेक्ट। हार्ट रेट जो है वो प्राइमरीली अफेक्ट किस तरह से होगा कि एनीमिया हो रहा है, सीवियर एनीमिया टेकिकार्डिया लीडिंग टू दी हाई आउटपुट हार्ट फेलियर, एरिथमियाज हो रहे हैं, या फिर एवी फिस्टुला, या फिर लार्ज पीडीए है, अगेन दैट विल आल्सो लीड टू हाई आउटपुट फेलियर, या फिर आपका थायरोटॉक्सिकोसिस है। सही है। अच्छा। देन अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द हार्ट फेलियर, लेफ्ट हैंडेड हार्ट फेलियर है, राइट हैंडेड हार्ट फेलियर। नॉर्मली जो हम बच्चों में देखते हैं वो लेफ्ट हैंडेड हार्ट फेलियर है, बल्कि ओवरऑल जनरल जो है वो लेफ्ट हैंडेड हार्ट फेलियर आर मोर कॉमन। राइट हैंडेड हार्ट फेलियर आर नॉट दैट मच कॉमन। सेकंड जो है बाइवेंट्रिकुलर फेलियर हम देखते हैं, क्योंकि एक अगर वेंट्रिकल जो है वो अफेक्ट होगा तो दूसरा वेंट्रिकल भी सिमिलरली जो है वो अफेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, इम्पेयर्ड सिस्टोलिक फंक्शन है, सिस्टोलिक फेलियर है, तो वो यूजुअली मायोकार्डिटिस में या फिर आपका जो है हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक फेलियर होता है। डायस्टोलिक फेलियर यूजुअली रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, कंसल्टेटिव पेरिकार्डिटिस में, कार्डियक टेम्पोनाट में, लार्ज पेरिकार्डियल एफ्यूजन है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर्ली जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वो क्या कहते हैं, उसकी फिलिंग ही प्रॉपर नहीं हो पा रही है, दैट लीड्स टू डायस्टोलिक फेलियर। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सीएचएफ इन इन्फेंट्स इंक्लूड्स पुअर फीडिंग, फेलियर टू थ्राइव, टेकिपनिया, डायफोरेसिस विद फीडिंग, और ओल्डर चिल्ड्रन में प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इजी फटीगेबिलिटी एंड एडिमा।
द फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स डिपेंड ऑन वेदर द पल्मोनरी वेनस कंजेशन हो रही है, सिस्टमिक वेनस कंजेशन है, या बोथ आर प्रेजेंट। तो अगर जो है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी वेनस कंजेशन होगी, अगर जो है राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो सिस्टमिक वेनस कंजेशन होगी। टेकिकार्डिया होगा, गैलप रिदम मिल सकता है, थ्रेडी पल्स में भी प्रेजेंट विद ईदर काज। तो लेफ्ट साइडेड फेलियर में आपको प्रिडोमिनेटली टेकिपनिया, ऑर्थोपनिया, वीजिंग एंड पल्मोनरी एडिमा मिलेगा, और राइट साइडेड फेलियर में आपको जो हेपेटोमेगाली, एडिमा, डिस्टेंडेड नेक वेन्स मिलेंगे। सही। अच्छा, ये क्लिनिकली खैर ये कहा जाता है, इसमें डिफरेंशिएट तो करते हैं, लेकिन जब हम मोस्टली जो देख रहे हैं पेशेंट्स को, उसमें इसमें इतना डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। एडिमा भी मिल रहा होता है आपको, साथ में जो है वो पल्मी क्रैप्स भी मिल रहे होते हैं, जेवीपी भी बाद आपको जो है, क्योंकि बेसिकली दोनों वेंट्रिकल्स इंटरडिपेंडेंट। अगर लेफ्ट साइड फेलियर होगा तो राइट साइड फंक्शन कॉम्प्रोमाइज इनवेरिएबली हो ही जाते हैं। सिमिलरली अगर राइट साइड फंक्शन अगर कंप्रोमाइज्ड है तो लेफ्ट साइडेड वेंट्रिकल के जो है वेंट्रिकल के फंक्शन कंप्रोमाइज हो ही जाते हैं। सही। तो वो दोनों वेंट्रिकल एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करवाएंगे? आप चेस्ट एक्सरे करेंगे तो कार्डियोमेगाली मिलेगी। ईसीजी में आपको एरिथमिया मिल सकता है अगर एरिथमियास वगैरह हैं, या आपने बेसिकली काज को देखना है तो उसमें आपके जो सीबीसी वगैरह भी आ जाएगा। आपने जो है वो यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स भी करवाने हैं, तो सीबीसी में आपको एनीमिया मिलेगा। यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है आपको क्रेटिनिन में भी रेस मिल सकता है अगर एजीएन है फॉर एग्जांपल, और आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट में आपको हाइपोनेट्रीमिया मिल सकता है अगर कार्डियक फेलियर हुआ है तो। सिमिलरली ईसीजी में आपको एरिथमियास मिल सकते हैं, ब्लॉक्स मिल सकते हैं। इकोकार्डियम जो है वो बेसिकली आपको डायग्नोस्टिक है, वो आपको बताएगा कि लेफ्ट साइडेड फेलियर है, राइट साइडेड फेलियर है, क्या है। सही है। और उसमें आपको चेंबर साइजेस अपने असेस करने हैं, चेंबर साइज वो इंक्रीज होंगे अगर लेफ्ट हैंडेड फेलियर हुआ है। माइक्रोनल फंक्शन आप एक्यूरेटली असेस कर सकते हो, और आप कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अगर प्रेजेंट है, लार्ज वीएसडी है, लार्ज पीडीए है, कोप्टेशन है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, सिवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो अभी आप डायग्नोस कर सकते हो। अच्छा जी, देन ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। उसमें आपके करेक्ट अंडरलाइंग काज ऑफ हार्ट फेलियर, उसमें आपने जो है चार प्रिंसिपल 4 डीज हैं। डाइट आपने देखनी है, डिजिटलिस, एक तो आपने अंडरलाइंग डिजीज को ट्रीट करना है अगर लेट्स सपोज सेप्टल लीशन फॉर एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले भी आपने ऑब्वियसली पेशेंट को जो ऑप्टिमाइज मेडिकली ऑप्टिमाइज करना है। तो उसमें 4 डीज क्या क्या आते हैं? डाइट आपने देखनी है, डिजिटलिस, दूसरा डी ये है डायोरेटिक्स है, एंड थर्ड डायलेटर्स है। डाइट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली अगर लेट्स सपोज कि हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपको जो है, एक तो ये है कि आपने अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है तो आपने लो सोडियम और हाई कैलोरी डाइट तो देनी है, साथ में आपने उसका वेट को भी देखना है कि वेट कैसा बच्चा गेन कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने अपने जो एनोटिक हार्ट डिजीज के लेक्चर में बात भी की थी कि अगर जो है बच्चा प्रॉपरली गेन नहीं कर रहा है तो उसे हम ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे विद इन टाइम, क्योंकि हमारे पास सर्टेन लिमिट्स, हम 5 kg से अबव अगर वेट होता है तो यूजुअली हम हमारे यहाँ सर्जन कंफर्टेबल होते हैं कि वो सेप्टल रीजन को क्लोज कर सकें। तो आपने जो है वो डाइट को इंपॉर्टेंट देनी है, आपने कैलोरीज ज़्यादा देनी है, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा उसकी वजह से रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा होगा, कितनी होगा, तो कैलोरीज बच्चा उसमें भी बर्न कर रहा होगा, इसकी वजह से वेट गेन नहीं होगा। वेट गेन नहीं होगा तो आप उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर सकेंगे। इन द केस ऑफ लार्ज वीएसडी आप उसे सेप्टल क्लोजर नहीं कर पाएंगे। सही। तो डाइट को आपने बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। देन डिजिटलिस है, वो अगर कार्डिकॉन्टिलिटी का प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज मायोकार्डिटिस है, या फिर आपका कोई और ऐसी डिजीज है जिसमें कॉन्टिलिटी इज अफेक्टेड, तो उसमें आप डिजिटलिस दे सकते हैं। टिंकार्डिया हुआ होगा किसी वजह से फॉर एग्जांपल, उसमें आपसे डिजिटलिस का रोल आ जाता है। देन डायबिटिक्स, आपने प्रीलोड कम करना है तो उसके लिए आपके पास जो है फ्रुसेमाइड है, स्पाइनोलेक्टोन है। डायलेटर्स में आपके जो आफ्टर लोड रिडक्शन करेंगे तो ही जो है आपका हार्ट प्रॉपर्ली पंप कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मायोकार्डिटिस में वो एक जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम देखते हैं वो ये कि जी ब्लड प्रेशर जो है अगर वो पेशेंट के लो हो रहे हैं तो फौरन से जी वो आ जाते हैं, कॉल आ जाती है कि जी ये तो ब्लड प्रेशर स्लो है, हम इसका हम डोपामिन स्टार्ट करते हैं, इसका हम जो है कोई ये लेट्स सपोज हमने कोई डायलेटर वीनो डायलेटर फॉर एग्जाम्पल मिलिनॉन वगैरह स्टार्ट किया हुआ है, तो फौरन से एक जो नीचा रिफ्लेक्स होता है कि जी मिलिनॉन बंद कर दें और डोपो बढ़ा दें ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। नहीं, वहाँ आपने जो है ब्लड प्रेशर को कम करना होता है ताकि जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जो ऑलरेडी फेल हुआ हुआ है उसको आप मजीद आफ्टर लोड को नहीं बढ़ाएंगे। सही है। तो आपने जो है एस इनहिबिटर्स, या फिर आपका फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चा ओरली नहीं ले पा सकता तो आप आई मिलेनॉन वगैरह फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर वो यूज कर सकते हैं।
अच्छा जी, जनरल केयर में पहले तो आपके जो बात की कि आपने जो है रेस्ट देना है, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट डिमांड कम हो जाएगी, तो कार्डियक आउटपुट भी के डिमांड भी कम हो जाएगी, तो आपका जो है पेशेंट हार्ट को रेस्ट मिलेगा और उसको जो इसकी जो भी इन्फ्लेमेशन वगैरह वट एवर रीजन है वो उससे इम्प्रूव होना बेहतर होने में मदद मिलेगी। देन ऑक्सीजन देनी है आपने, इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी एडिमा, सोडियम और फ्लोराइड डिस्कशन करना है, सोडियम क्यों कम करना है कि वेस्कुलर कंजेशन कम होगी, क्योंकि सोडियम जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं, उसका बेसिकली क्या है कि वो फ्लूइड्स को जो है इंट्रावेस्कुलरली इंक्रीज करता है, सही है। तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से कंजेशन जो है वो बढ़ने के चांसेस होंगे। सही। अच्छा जी, देन इसके बाद अंडरलाइन काज, अगर फॉर एग्जांपल एएसडी वीएसडी है, एएसडी तो खैर नहीं करा था कंजेस्टिव हार्ट पे, लेकिन वीएसडी है या लार्ज वीएसडी है, लार्ज पीडीए है, या कोऑक्टेशन है, या आपका जो है एओर्टिक स्टेनोसिस है, या आपका मायोकार्डाइटिस है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आपने आईवीआईजी वगैरह देनी है। सही। ट्रांसप्लांटेशन रिमूव डिजीज हार्ट, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो ऑप्शन तो है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम बिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारे पास एक तो पहले ही जो दूसरे जो कॉमन डिजीज उनके इलाज नहीं हो पाते, तो ट्रांसप्लांट पे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और उसके लिए हाई फंडिंग की ज़रूरत है, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। बहुत कम मुल्कों में अवेलेबल होता है, और जहाँ अवेलेबल होता है वो लोग पहले अपने 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 जो सिटीजन होते हैं उनको प्रेफर करते हैं, और उसके बाद उसकी कॉस्ट ज़्यादा हाई होती है। तो और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि चले जी, अगर हम चीज़ों को देख भी लें, कॉस्ट को भी देख लें, आप टेक्निकल इशूज़ को भी देख लें, आप जो है अपना सेंटर भी बना लें जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा हो, तो अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो ये आता है कि जी ये जो आपने डिजीज हार्ट को तो निकाल लिया, लेकिन आपने एक डिजीज के बदले दूसरी डिजीज बार्गेन कर ली है, कि अब उसको जो है इम्यून सप्रेसेंट पर रहना पड़ेगा, और एक नई चीज जो है वो एक नई डिजीज जो है आप फिर उसके जगह पर वो ले लेते हैं। अच्छा जी, देन आपके जो है प्रीलोड रिड्यूस करने के लिए आपके पास फ्रुसामाइड है, स्पिनोलेक्टोन है। फ्रुसामाइड क्या करती है, साल्ट एक्सक्रीशन बाय सेंडिंग लूप ऑफ हेनले, रिड्यूस प्रीलोड। और सिमिलरली स्पिनोलेक्टोन है वो रिड्यूस करती है, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है। सही। इसको फ्रुसामाइड बेसिकली जो है वो सोडियम पोटेशियम दोनों ही को जो है एक्सक्रीट आउट कर देती है, सही है। तो इसलिए हाइपोकैलीमिया एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर इन बन जाता है, कि उसकी वजह से और दूसरे मसले शुरू हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूटी में फर्क पड़ जाता है, और गट के इश्यूज आ जाते हैं। तो यानी आपने हाइपोकैलीमिया को, और फिर क्या कहते हैं, मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है, मसल मायोपैथी वगैरह डेवलप हो सकती है। तो आपने पोटेशियम का भी ख्याल रखना है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिव, इसीलिए इसका रोल आता है कि ये सोडियम तो लॉस करेगी, लेकिन साथ में पोटेशियम स्पेयर करती है। सही। अच्छा जी, तो लास्ट स्लाइड, तो इसमें जनाब जी आपके देन आपको डायलेटर्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास हाइड्रोलिजीन है, आर्टियोल डायलेटर। यूजुअली ये जो है अडल्ट में खैर यूज़ की जाती है, लेकिन ये कि बच्चों में भी हम जो है अक्यूटली यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो आपका जो नाइट्रोपेरोसाइड है, अगेन दैट इज मोर कॉमनली यूज्ड इन एडल्ट्स। हम जो यूजुअली यूज करते हैं नाइट्रोपेरोल, कैप्टोप्रिल है, या फिर आपके पास मिलेनॉन वगैरह है, दैट इज आल्सो आफ्टर लोड रिड्यूसिंग एजेंट। डाइस्टेट इनहिबिटर 3 है। तो ये डिफरेंट ड्रग्स हैं। जो नाइट्रोपेरोल है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इट इनहिबिट्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, रिड्यूसेस एंजियोटेंसिन 2 प्रोडक्शन एंड लीड्स टू द आफ्टर लोड रिडक्शन। ठीक है। सो प्रॉब्ली दैट कंक्लूड्स। अच्छा जी, आगे डिजिटैलिट्स आ गए। डिजिटैलिट्स क्या करती है, डिजिटैलिट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। वो बेसिकली हार्ट रेट तो कम करती है, मगर अफेक्टिव कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है हार्ट की, उसको इम्प्रूव करती है। इट इनहिबिट्स मेम्ब्रेन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। तो कैल्शियम इंक्रीज, इंट्रासेलुलर इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट इज इंक्रीजेस। इंप्रूव्स कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीजेस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। इसके अलावा डोपामीन है। डोपामीन क्या करती है, रिलीज करती है मायोकार्डियल नॉरएपिनेफ्रिन प्लस डायरेक्ट इफेक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर, में इंक्रीज सिस्टमिक ब्लड प्रेशर एट लो इन्फ्यूजन रेट, डायलेट्स रीनल आर्टरी। ये प्रोबेबली मेथ है कि जी रीनल आर्टरी जो है वो उसकी रीनल आर्टरी को डायलेट करती है, और उसकी वजह से जो है अगर रीनल ब्लड फ्लो जो है बढ़ाती है, लेकिन प्रोबेबली इसका इतना अच्छा इसमें रोल नहीं है। बेसिकली ये हम यूज करते हैं कि थोड़े से ब्लड प्रेशर वगैरह को आप बढ़ाना हो आपको, या फिर आपको जो परफ्यूजन है उसको इम्प्रूव करना हो, तो वहाँ डोपामीन का रोल आ जाता है। सो दैट कंक्लूड्स आवर टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो आपको तो बता दें प्लीज।
हेलो।